Yes, good morning, good afternoon, all of you. Wait for a few minutes. We will start our lecture. Okay, let's start. I think last part of the chapter periodic table was left right now. I think we have to do a comparison between alkali metal and halogen. This part is left, isn't it? Am I audible? Yes. So let's start without wasting our time. Right here, what we have to do, we have to compare the element of what are the similarity and dissimilarity between alkali metals, that is group 1 element and group 17 element. Group 1 element और group 17 element में क्या क्या सिमिलरिटी है और डिससिमिलरिटी है वो हम लोग को वन बाय वन डिस्कस करना है. Now, if you see first point is what element, what are the elements in alkali metals? Alkali metal is group 1. So in group 1 there are right, 6 elements, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. While in halogen, these elements are the fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. Right now, here right now acetylene is not, normally we are not using acetylene. Why? Because it is radioactive in nature. Next occurrence. Okay, is it okay? Okay. Now, next topic is what occurrence. In which form they are found. Normally, they both are reactive in nature, right? Though due to they are highly reactive in nature. Why? First of all, first question is that why these are reactive in nature? ये जो element है वो reactive क्यों है? Because reactivity means what? Reactivity means formation of bonding, making and breaking of bond. Reaction means what? Making and breaking of bond. अब नया बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है या पुराना बॉन्ड कैसे टूटता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ, दिस इज जस्ट ड्यू टू ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी वजह से होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड नया बॉन्ड फॉर्म होगा. ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर. तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ ब्रेकिंग एंड गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. Bond formation is nothing but a gaining and losing of electron. If you see group 1 element right now, in group element 1 element, the valence electron is what? How many valence electrons are there? Only one electron is there. एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आता है. इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ये क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. वाई एग्जैक्टली हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में समझेंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड बिकॉज ऑफ वन इजीली वो लूज कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. सिमिलरली क्लोरीन, हेलोजेंस जितने भी है, ऑल हेलोजेंस हैव कॉन्फ़िगरेशन व्हाट? NS2NP5. In next chapter we will understand that octet rule, what is octet rule and all, right? So every element tends to behave such like way that they should contain 8 electrons in outermost shell. जब इनके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. वो लोग वो करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, halogens का configuration क्या है? What is the configuration of halogen? NS2NP5. So here 7 electrons are there. They need one electron to complete 8 electrons right now. So they can gain one electron easily. एक इलेक्ट्रॉन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत इजीली हो जाता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेंगे बिकॉज, और there are many factors also there, smaller size and high electronegativity. Because of that they can gain electron easily, and electron easily gain कर रहे हैं, यहाँ पे electron easily lose कर पा रहा है. Therefore they are reactive in nature, and as they are reactive in nature, therefore they always occur in combined state. Means क्या, अभी एग्जाम्पल अगर मैं एक बात बताऊँ, मेरा जो है एक बंदा है, एक बच्चा है, राइट, जिसको क्लास में दोस्त बनाने की आदत है, फ्रेंड्स सर्कल क्रिएट करने की आदत है.
तो क्या वो बच्चा अकेले रहेगा क्लास में? नहीं, राइट ना। वो बच्चा जो है ऑलवेज कंपनी में रहेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में रहेगा, उसकी आदत है, उसका नेचर है कि वो हमेशा रिएक्टिव है, वो बात करना पसंद है लोगों से उसको, तो देयरफॉर वो हमेशा क्या रहेगा, एक फ्रेंड सर्कल में रहेगा। बट इफ आई टॉक अबाउट वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात करूंगा, जो स्टूडेंट जो है उसको बात करना पसंद नहीं है ना, वो टॉकटिव नहीं और वो अकेले रहना पसंद करता है, ऐसा बंदा है जिसको बात करना या फिर फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं है, तो क्या वो ग्रुपिज्म में रहेगा? नहीं, वो अकेला रहेगा। क्या रहेगा? अकेले रहेगा। तो वी अंडरस्टूड द थिंग ओवर हियर। क्या समझ में आया हम लोग को कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये जो स्टेट रेडी करेगा, मतलब डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, हाउ रिएक्टिव द एलिमेंट इज। एलिमेंट जो है वो कितना रिएक्टिव है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि कंबाइन में रहेगा या फिर अलोन रहेगा, राइट ना, अकेला रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, इसको बोलते हैं फ्री स्टेट, अकेले रहने को क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट। तो इफ द एलिमेंट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर, so it will occur in free state, and if the element is reactive in nature, then it will occur in what, uh, combined state. So here both are reactive in nature, therefore they are always occur in combined state. Understood? Combined state means what? They always uh, occur in the form of oxide, carbonate, sodium carbonate, sodium oxide and all, right? तो हमेशा वो कंबाइन किसी और चीज से जुड़े हुए रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। अंडरस्टूड? NaCl, Cl अकेला नहीं मिलेगा, Cl जो है ऑलवेज हमेशा करेगा आपको NaCl के फॉर्म में, NaBr के फॉर्म में, एंड सो ऑन, ऐसे कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल स्टेट, राइट ना। फिजिकल स्टेट अगर बात करेंगे, सो अल्कली मेटल्स, दे आर शाइनी white in color, right ना। solid metals, they are shiny white solid metals, right ना। we all know that left side elements are metals while right side elements are non metals, so these are metals, these are non metals. Understood? So here they are white in color, all alkali metals are shiny white in color and they can be cut in by knife, एकदम soft metal होते हैं, and because of that we can cut it by using knife. सोडियम जैसे एग्जांपल अगर मैं लिया, उसको नाइफ से अपन काट सकते हैं, मेटल है फिर भी कट सकते हैं। बट among all these only lithium is the hardest one, means you can't cut lithium by knife, by using knife, right ना। तो लिथियम को छोड़ के बाकी एलिमेंट को आप जो है वो नाइफ के जरिए कट कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली दे आर occur in shiny white color in nature, right? But ये जो कलर होता है वो कब होता है? जब वो लोग फ्रेशली कट रहेंगे। बट इफ यू कीप इट इन एयर, अगर उसको मैं एयर में रखूंगा, व्हाट विल हैपन, ये जो है रिएक्ट कर जाएंगे। सोडियम एग्जांपल, सोडियम को कट किया, सोडियम जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, एंड सॉरी Na2O मिलेगा, एंड यू विल गेट द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल एंड इट इज डर्ली कलर, ऑफ वाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑफ वाइट इन कलर। नॉर्मली वाइट कलर, प्योर वाइट कलर के होते हैं वो, बट जब अगर वो लोग को हम लोग थोड़ा सा हवा में छोड़ देंगे, तो इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, एंड ऑक्साइड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट ऑफ वाइट इन कलर, वी कैन डर्ली कलर। अंडरस्टूड? यस, एक ही बच्चे को समझ में आया? व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको रिस्पॉन्स करना है। एंड व्हाट वीडियो ऑन करने बोला था, वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियोज ऑन करो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हियर, halogens. Halogens are non-metals, right? Non-metals which are colored, right now, which are colored. Colored means that, means what? uh, Fluorine जो होता है, fluorine is a gas, right now it is yellow color gas. Chlorine is also gas, greenish yellow color का जो है गैस होती है, right? Bromine, bromine is a liquid, it is a violet color liquid. And iodine, iodine is also iodine is solid and it is what, वॉयलेट, डार्क वॉयलेट कलर सॉलिड होता है। यहाँ पे डार्क ग्रे लिखा है, बट आयोडीन जो है डार्क वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, क्योंकि जब आप उसको आयोडीन को वेपराइज करेंगे तो यू विल गेट द वॉयलेट वेपर। अंडरस्टूड बेटा? राइट। सो डार्क ग्रे लिखा है, ब्लैकिश कलर का, मतलब ऑलमोस्ट ब्लैकिश ही दिखता है वो, तो वैसा कलर का होता है। एंड दीज आर डायटोमिक इन नेचर। डायटोमिक मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर डायटोमिक इन नेचर, मीन्स Fe2, Cl2, I2, Br2, right now. So molecules are
formed by two atoms. Therefore, they are called as diatomic in nature. Now, valence electron and conductance. Right now, valence electron. How many electrons are there? Valence electron. Outermost में जो electron होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं valence electron. So, if you see the electronic configuration of sodium, so what is the atomic number? 11. So, what will be the electronic configuration? 281. Potassium 19. So what will be the configuration? 2881, right? So here if you can see, right, outermost electron is 1, right now, so we can say their valence electron is 1, right? So first point, how many valence electrons are there? One valence electron is there, right? And all contain same valence electrons, right now, therefore this shows similar properties. ये सारे एलिमेंट की जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम बनते हैं. नंबर ऑफ बॉन्ड सेम बनेंगे इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. सो बिकॉज ऑल possesses same what possesses same number of valence electron, therefore they form same number of bond, and therefore they shows similar chemical property. Understood? Yes or no? यहाँ से समझा? Yes or no? बोलो बेटा. They tends to form positive ions, right? As I told you, they have one electron in valence. They have one valence electron, so they lose this valence electron, and ये एक electron lose करेगा तो they will get what? Positive charge. So unipositive ions form करते हैं. They form unipositive ions means एक positive charge carry करने वाले ions form करते हैं. Why? Because they contain one valence electron. Understand? Now, conductivity, they are good conductor of electricity because they are metals के अंदर होता है क्या है, अगर मैं डीप में बताऊंगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो फ्री होते हैं, राइट ना. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रीली, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं होते, फ्रीली अरेंज होते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होगा? वो फ्लो करेंगे, माइग्रेट करेंगे. एंड व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर मीन्स द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? Flow of ion or migration of ions. It could be positive ion or it could be electrons. तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन अगर माइग्रेट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट, और करंट जो शो करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स. So they are good conductor. Why? Because in these metals, electrons are loosely held, or we can say electrons are free, right? Now, free means freely uh, occupied in the crystal lattice, right? ना एक crystal जो lattice अगर देखेंगे तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है freely arrange है, and therefore electron can migrate over here, and therefore they are good conductor of electricity. Understood? Now metallic character, if you see talk about metallic character, we have already talked about this, already we have seen this. So as we move down the group, the size of atom increases, therefore metallic character increases. Here if you see the halogen part, non-metals, so they possesses one electron. Again here 7 electrons are valence electrons are 7, right? ना आप chlorine उठा लो, bromine, fluorine लिखते हैं. Fluorine, what is the atomic number? 9, 2,7. Chlorine 2,8,7. So here if you see the valence electron is 7, right? Now how many electrons are there? 7 electrons are there in valence shell, right? And therefore as they contain 7 electrons in valence shell, therefore they so shows similar chemical properties, as I told you, like these metals. Now uh, what they form? They form uni-negative ion. क्या form करता है? Uni-negative ion. Why? Because they have configuration like this, right? Now उनको पास क्या है? Outer most में how many electrons are there? 7 electrons are there. If they take one electron from outside, what will happen? They will complete their octet. उनके outer most में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, and octet means their shows stability. अब कोई भी चाहेगा उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट करना, तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एंड देयरफॉर एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो देयरफॉर दे फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन. Cl ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लिया, एंड दे विल फॉर्म Cl माइनस आयन. Cl माइनस 2 नहीं बनेगा, Cl माइनस बना बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लिया. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बेटा? Here also the electrons are there, but electrons are not freely arranged. Therefore, they are non-conductor of electricity. This part will be understood in 12. We will see deep uh,
नॉलेज ऑफ दिस इन 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग को है, तो वो हम लोग को पढ़ना रहेगा। उस टाइम पे आपको आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग को यहाँ पे जनरल नॉलेज दिया हुआ है, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। दे आर हाईली रिएक्टिव, वो तो हो चुका है राइट ना। और यहाँ पर जो दूसरे पैरामीटर्स थे वो बताया गया है राइट ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? एंड रिमेनिंग पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट, यू कैन गो थ्रू राइट ना। ये सब पार्ट ये ना एब्स्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में करा चुका हूँ। वो सब चीज़ आपको जनरल दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, एक तरह का शॉर्टकट में दिया हुआ है। सो दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, so I will not repeat it. Understood? So here we have completed our chapter number 1, that is periodic table. Any doubt is there in periodic table? Yes? बेटा आपको कोई डाउट है? नो डाउट। ओके बेटा। Now our next topic, next chapter is what? Chemical bonding. The very first question arises, what we are going to study in this chapter. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं राइट ना। एज द नेम सजेस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आई एम राइटिंग ओवर हियर राइट, सॉरी, chemical bonding, right? So this chapter, second number, chapter number 2, we are going to study. Now what we are going to study in this chapter? In this chapter we will study why. First, what is chemical bond? We will see what is chemical bond, right? Why these bonds are formed, right now? How these bonds are formed? What are the different types of bond, right ना? कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं, क्यों बनते हैं, बनने का रीजन क्या है, दैट विल बी सी इन दिस चैप्टर. There are different types of theory which explain us about chemical bonding, how the chemical bonds are formed, right? Like causal Lewis approach and VSEPR, valence shell electron shell repulsion theory, right? VBT, valence bond theory, then CF3, crystal field theory, LF3, ligand field theory, and MOT, molecular orbital theory. There are many theories which explain us about how the bonds are formed. हम लोग को बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हम लोग को कौन बताता है, अलग अलग थियरीज बताती है। आपके चैप्टर में ये सारी चीज़ दी है कि नहीं पता नहीं, बट ये केमिकल बॉन्डिंग आपको, ये चैप्टर आपको हायर डिग्री में भी आएगा, और उस टाइम को पे आपको पूरी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। अंडरस्टूड? ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल राइट ना एट दैट टाइम। ओके, ये यहाँ पर शायद वो सब नहीं दिया बिकॉज दे आर दिस सीरीज आर वेरी डिफिकल्ट इन नेचर, बहुत डिफिकल्ट है, तो हम लोग को बस जनरल नॉलेज दिया है, हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म, दैट मच इज गिवन इन योर चैप्टर, सो विल सी दैट राइट। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. We all know that everything in this world right now wants stability. If you see right now, अपने एतराफ में देखो, अपने सराउंडिंग में देखो, इफ यू सी इन योर सराउंडिंग, you will realize that everything, even a single particle right now, particle of universe right now wants stability. If you take example around us right now, you are studying, why? Because you want stability. I am teaching you, why? Because I want stability. राइट ना, वाटर फॉल्स राइट ना, वाटर फॉल्स राइट ना, तो वाटर जो है ऊपर से नीचे गिरता है, क्यों गिरता है? टू अटेन द स्टेबिलिटी. एवरीथिंग राइट ना, एवरीथिंग इन नेचर राइट ना आर मीन्स डूइंग द थिंग बिकॉज ऑफ टू अटेन द स्टेबिलिटी. कुछ भी काम कर रहे हो लोग क्यों कर रहे हैं? टू अटेन द स्टेबिलिटी. नाउ व्हाट इज स्टेबिलिटी? Question is, what is stability? For us, stability is different for different लिविंग बींग राइट ना. अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग जो है वो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया अलग होता है राइट ना. जैसे मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, इसके पास रोटी है वो कपड़े के लिए भागता है, इसके पास कपड़ा है वो बोलेगा मुझे मकान चाहिए, जिसके पास मकान है वो बोलेगा मुझे क्या चाहिए?
बंगलो चाहिए, नहीं बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस जिसके पास है वो बोलेगा बंगलो चाहिए, बंगलो है तो कार एंड सो ऑन, राइट ना। सो इंसान जो है वो लालची है, राइट। तो बिकॉज ऑफ इंसान का नेचर ही वैसा है, तो बिकॉज ऑफ दैट इंसान जो है वो अपनी चीज़ें चेंज नहीं करता, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है। स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो जो है हमारा बहुत अलग अलग रहेगा, हर इंसान से कुछ चेंज वेरी होता है, अंडरस्टूड। बट if you talk about element, if I am talking about element, the stability of element, so it require only two things, right ना। element जो है वो दो ही चीज मांगते हैं उसकी stability के लिए, दो क्राइटेरिया है, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। क्या क्राइटेरिया है? डुप्लेट एंड ऑक्टेट means what? Duplet means what? The element which contain two electrons in their outermost shell, right now. To attain the stability, elements needs to what? Complete their two electrons in outermost shell। और ये सिर्फ खाली हीलियम शो करता है, या हीलियम के जैसे एलिमेंट जो नजदीक के हैं वो करते हैं ये वाला। मोस्टली 99% कौन सा फॉलो होता है? ऑक्टेट रूल। क्या फॉलो होता है? ऑक्टेट रूल, विच सजेस्ट दैट एलिमेंट्स टू अटेन द स्टेबिलिटी, एलिमेंट नीड्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना, इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? उसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देन ओनली दे विल अचीव द स्टेबिलिटी। like inert gases, if you see group 18 elements, right now they have what? Arrangement of inert or noble arrangement. No, what is noble arrangement? That is octet. They have octet in their outermost shell. Take example of helium. Here if you see helium atomic number is 2, so configuration will be 2, so outermost में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। What about neon? Neon 10 atomic number is 10, so 2,8 outermost में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए, तो इसका मतलब इसका वैलेंस शेल जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। एंड so on, if you see these elements right now, each element consists of 8 electron in their valence shell। उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड जो उनका क्राइटेरिया था वो फुलफिल है, therefore they are least reactive or non-reactive, non-reactive, please understand, non-reactive। now I have used two words over here, least reactive and non-reactive। why this is so, beta? if you see right now, so these elements helium, neon, argons are non-reactive in nature, and these elements, the bottom elements are reactive in nature। पहले स्टार्ट में ये था कि हम लोग को ये मालूम था कि ये दोनों, ये पूरे के पूरे क्या नॉन रिएक्टिव है। वाई दिस इज सो? बिकॉज ये लोग जो है उनके पास जो है जो जरूरत की चीज थी वो कंप्लीट है, स्टेबिलिटी चाहिए था, उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट ना। अंबानी के बेटे के पास बहुत सारा पैसा है, तो अंबानी के बेटे को अगर बोलेंगे काम कर तो करेगा क्या? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज उसकी जो फुलफिलमेंट थी, उसकी जो नीड थी वो कंप्लीट है, फुलफिल है, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू वर्क, उसको वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। बट समझा? अब फिर नहीं है वर्क करने की, इसका मतलब दे शुड बी नॉन रिएक्टिव, और यही होना चाहिए था, यही माना जाता था। बट रिसेंट में बाय फ्लूक बोल सकते हैं हम लोग, कोई साइंटिस्ट जो है अलग, ब्रेथलॉट नाम का साइंटिस्ट है, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और कुछ और एक्सपेरिमेंट करते करते उसको कुछ और पता चल गया, राइट ना। मतलब कुछ कर रहा था वो एक्स पे काम, उसको मालूम पड़ा वाई के बारे में, ऐसा। तो उसको ये मालूम पड़ा कि इनर्ट गैसेज जो है वो लोग रिएक्टिव है, वो लोग क्या करते हैं? रिएक्टिव है। और कैसे मालूम पड़ा? ये 12 में बताऊंगा आपको, फिलहाल अपने पास इतना टाइम नहीं है डीप में जाने के लिए। तो उसको ये मालूम पड़ा कि ये जो एलिमेंट है, नीचे के एलिमेंट, वो लोग रिएक्शन करते हैं। इन सिंपल सी बात है यार, मैं बोलूँ आपको कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट ना। एक वो बच्चा है जिसको पढ़ना ही नहीं है, एक वो बच्चा है जिसको पढ़ना है, राइट। पढ़ने वाले बच्चे को नीड है पढ़ने की, ऑब्वियसली, तो वो पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ाने के लिए मेरे को ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर आप लोगों में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को मैं बोलूँगा तो आप लेक्चर पे पूरी तरह ध्यान देंगे, है ना, और आंसर करेंगे, राइट। तो ये इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। बट अगर मैं बात करूँ, एक बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं, जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, राइट, तो वो बच्चे को पढ़ाने के लिए, हाँ, अब यहाँ पर भी दो टाइप के टीचर आते हैं। अगर टीचर को पढ़ ही नहीं है कि बच्चा पढ़े ना पढ़े मैटर ही नहीं करता,
तो टीचर क्या करेगा, टीचर जानते बोल के खाली अपनी पढ़ाई कराएगा, मगर जमीर सर रहेंगे तो जमीर सर क्या करेंगे, बार बार पीछे लगेंगे, वीडियो ऑन करो, आप रिस्पॉन्स करो बेटा, है ना, बार बार बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर डिपेंड करता है टीचर कैसा। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि रिएक्टिविटी नहीं होती है, यस उसको ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की, बट अगर करवाने वाला बैठे बहुत एनर्जी लगेगी, मगर हो जाती रिएक्शन। मतलब ये जो लोअर वाले को करके देखे हम लोगों ने, उसको बहुत कितना अराउंड 1250 किलो जूल एनर्जी लगती है। और उसके बाद जब किया गया था, जेनॉन ने रिएक्शन किया था, किसने किया था? जेनॉन पहला एलिमेंट जिसने रिएक्शन किया था। अंडरस्टूड? ओके ओके। नाउ the next question arises, the cause of chemical combination, right ना, why they are combining each other, what is the need of to form chemical bond? Yes, very good. Again अभी मैंने इतना मकबक किया, उसका आंसर वही है, to complete their octet, or we can say to achieve the noble electronic configuration, nearest noble electronic configuration. Nearest noble configuration क्या है? ये सब noble configuration है, 2 2,8 2,88 2,18 2,8 8 राइट ना, ये सारे नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब एग्जांपल, मेरे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम के पास ऑप्शन क्या है, सोडियम के पास क्या है, 281 है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या हो जाएगा इसके पास, इसका आउटर मोस्ट में ये वाला अचीव हो जाएगा, नियरेस्ट वाला अचीव हो जाएगा। सो व्हाट इज द नीड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन का नीड क्या है, कॉज क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग? To acquire the nearest noble gas configuration, right ना, and become stable. Understood? बोलो. Now next question arises, the first very important question. अभी तक introduction था. Chemical bond. Now what is chemical bond? As I told you, Na plus, what is the electronic configuration over here? 2,8,1. Cl minus, what is the electronic configuration is over here? 2,8,7. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7, हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, सॉरी, हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। इसको क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। क्या करना है? लूज करना है। इसको क्या करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है, टू अटेन द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इजंट इट बेटा? अरे हाँ है ना। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या आएगा, ये बोलेगा भाई एक काम कर, तेरे को एक की जरूरत है, मैं तेरे को दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं तेरे को दे देता हूँ, तू ले ले। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने क्या किया, व्हाट सोडियम डिड, सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड लूज इलेक्ट्रॉन किया तो क्या लगा, पॉजिटिव आयन बन गया। कौन सा पॉजिटिव आयन बना बोले, Na प्लस बना, यहाँ लिख देता हूँ, Na प्लस बना, क्या बना, Na प्लस बना। एंड Cl क्या किया, Cl ने वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन प्लस इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या मिलेगा हम लोग को, Cl माइनस बन गया। अंडरस्टूड बेटा? अरे हाँ है ना। अब बिकॉज ऑफ दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना, बिकॉज ऑफ दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, बिकॉज ऑफ दिस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आयन है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता होना चाहिए, the force between positive and negative ions is called as what? Electrostatic force of attraction. So here इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, Cl माइनस एंड Na प्लस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और जिसके जरिए क्या होंगे, जो एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर वो लोग बाइंड होंगे, जुड़े रहेंगे, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज व्हाट, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a force of attraction develops between the atoms in a molecule। मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल बॉन्ड। अंडरस्टूड बेटा?
एक ही बच्चा है, यस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? प्लीज रिस्पॉन्स फटाफट किया करो, सब लोग का आवाज आना चाहिए, ठीक है? तो वापस रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन एग्जाम्स में आता है आपको केमिकल बॉन्ड का, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? सो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू अटेन द स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल बॉन्ड। अगर शॉर्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू अटेन और टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, such force of attraction is called as what? Chemical bond. Understood? Now, types of chemical bond, right? ना, there are three types of chemical bond. Chemical bond क्या होता है? It is nothing but a partnership between two atom. दो लोगों के बीच में, यहाँ पे एटम है फिलहाल, अगर मैं जनरल बात करूंगा तो दो लोगों के बीच में जो पार्टनरशिप होती है उसको हम लोग बॉन्ड बोलेंगे, है ना? बॉन्ड। एक दो मेरी और समझो एग्जांपल, मेरी जो है किसके से, आर्या के साथ बहुत जमती है, तो मैं बोलूंगा आर्या को कि आर्या और मेरा हम लोग का जो है वो एक तरह का बॉन्डिंग है ना? एक बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग क्या है? एक तरह का पार्टनरशिप। नाउ, पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है? सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। फर्स्ट वन, ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, ऐसा हो सकता है कि आर्या ने मेरे को बोला सर अपन पार्टनरशिप करेंगे। आर्या ने मेरे को बोला, कंडीशन देखो, हम लोग वन बाय वन कंडीशन देखेंगे, आप मेरे को बताएंगे कौन सी कंडीशन कैसी रहेगी। फर्स्ट कंडीशन, आर्या टोल्ड मी दैट सर हम लोग पार्टनरशिप करेंगे। आर्या ने क्या बोला? आर्या को मैं ए से नोट कर रहा हूँ। आर्या बोलता है कि सर मेरे पास है ना एक, मैं ना क्या करता हूँ, कपड़े का बिजनेस करता हूँ, कपड़ा जो है वो मैं बनाता हूँ, आप है ना उसको बेचो, मैं आपको माल देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ माल। यहाँ पर ये बंदा जो है मेरे को क्या बोला, आर्या ने मेरे को बोला कि मेरे को माल दे देगा। मैंने उससे माल ले लिया, राइट? और हम दोनों के बीच में ऑब्वियसली पार्टनरशिप हुई है कि भाई उसने मेरे को माल दिया एक पर्टिकुलर, राइट? और मैंने उससे माल ले लिया, खरीद लिया, पैसा उसको दे दिया, राइट? लेन देन हो गया, गिविंग एंड लेजिंग, गेनिंग एंड लूजिंग दोनों चीज़ हो गई। यहाँ से उसने लूज किया और मैंने इसको, उसने फिर पैसा गेन किया, राइट ना? यहाँ पर क्या किया उसने? माल दिया और मेरे से पैसा ले लिया, राइट ना? दोनों काम हो चुका है और ये बी को माल मिल चुका है, बराबर? एक ही कंडीशन है, इसके बीच में पार्टनरशिप। सेकेंड कंडीशन है, आर्या ने मेरे को बोला सर चलो एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, क्लास खोलते हैं, टीचिंग क्लासेस। बोला ठीक है बेटा, चलो क्लासेस खोलते हैं। तो आर्या भाई साहब मेरे को बोलते हैं कि चलो सर क्लास खोलेंगे, तो आर्या ने क्या बोला कि चलो अब सर इक्वल की इक्वल पार्टनरशिप करेंगे। बोला अच्छी बात है आर्या, अच्छा लड़का है, तो हम लोग अपन ऐसे ही करेंगे, पार्टनरशिप इक्वली करेंगे। तो आर्या ने ये बताया कि सर क्लास खोलने के लिए आपको 5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। 5 मत लगाओ, 1 लाख ही लगा दे, पैसा नहीं है, लॉकडाउन का, लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो लगाने के लिए बात किया है आर्या ने। तो आर्या 1 लाख रुपए लगाएगा और जो बी पर्सन है, मतलब समझो मैं हूँ, तो मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा, बराबर? बराबर, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, अब दोनों ने एक एक लाख रुपए लगाया, राइट? और इन दोनों के बीच में जो है वो पार्टनरशिप हो गई, बराबर? इजन इट? अरे हाँ या ना? समझा? मेरा ये क्वेश्चन है, हाँ मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक लाख रुपए लगा दिया हम लोगों ने, बराबर? मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें दोनों में पहला जो क्राइटेरिया था जिसमें लेन देन हुआ था, पूरा गेनिंग एंड लूजिंग हुआ था, और ये जो है वो इक्वल इक्वल वाला है। इक्वल वाला कैसा मतलब? यहाँ पे हर चीज़ इक्वल रहेगी, मतलब यहाँ पर आर्या ने मेरे को बोला 1 लाख रुपए लगाने का है, मतलब जो प्रॉफिट होगा वो भी बराबर बराबर बटेगा, काम जो करना है वो भी बराबर 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 रहेगा। ये मतलब आर्या बोलेगा मैं 3 दिन काम करूंगा तो मेरे को भी 3 दिन काम करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो मेरे को ये बताओ कौन सा जो बॉन्ड है, कौन सी जो पार्टनरशिप है वो वीकर है, जल्दी टूट जाएगी, और क्यों? वाई? विच बॉन्ड या विच पार्टनरशिप इज वीकर देन अदर, एंड वाई? एक जो है वो शेयरिंग से हुई है, दोनों ने इक्वल काम करने की बात की, इक्वल करने की बात की है, और एक जो है गेनिंग एंड लूजिंग से हुई है। ओके, नहीं समझ में आ रहा? चलो अपन उसको एग्जांपल देके और थोड़ा एलिबरेट करते हैं। समझो कि यहाँ पर क्या है, मैंने बोला था यहाँ पे हर चीज़ इक्वल होना चाहिए। तो हो सकता है कि भाई हम लोगों ने डिसाइड कर लिए, मैं टीचर हूँ,
मैंने आर्या को बोला कि चलो हाँ ठीक है। पहले फर्स्ट वीक में क्या हुआ, 3 दिन ये गया काम पे, मैं 3 दिन काम पे गया, दोनों ने खुशी खुशी करे। सेकेंड वीक में मैंने बोला आर्या को, आर्या अब आप क्या करेंगे, आज मेरे को थोड़ा काम है बेटा ये हफ्ते में, तो आप क्या करेंगे, 4 दिन जाओ, मैं 2 दिन गया, बराबर। अगले हफ्ते में मेरे को और काम में बिजी हो गया, तो मैं आर्य को बोला, आर्य तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरी बात सुनो, आप 5 दिन जाओ, मैं 1 दिन जाता हूँ, राइट ना। मगर डिसाइड क्या होता है स्टार्ट में, डिसाइड ये हुआ था कि इक्वल काम होगा, इक्वल चीज शेयर होंगी, हर चीज इक्वल होगी। अरे हाँ या ना, बोलो। अब बताओ, यहाँ पर झगड़े होने के चांसेस है, यहाँ पर झगड़े होने के चांसेस है, यस झगड़े होने के चांसेस है। और भी आर्य जो है पहले दिन चुप बैठ जाएगा, दूसरे दिन चुप बैठेगा, मगर जब मैं दूसरी वीक में चुप बैठेगा, तीसरी वीक में, जैसे वीक गुजरते जाएंगे, अगर मैं नाटक करूंगा, अगर मैं इक्वल काम नहीं करूंगा, तो ये जो है आर्या बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कैसा है कि शेयरिंग हुई है, क्या हुआ है, शेयरिंग हुई है, अंडरस्टूड। बट अगर मेरे को गेनिंग एंड लूजिंग हो चुकी है, मतलब आर्या ने मेरे को माल दे दिया, अब मैं काम पे जाऊं ना जाऊं, मैं माल बेचूं कि ना बेचूं, आर्या को कोई फर्क पड़ता है क्या, आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं काम करूं ना करूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मेरे नाम माल बेचने से या मेरे काम नहीं करने से आर्या और मेरे बीच में दोस्ती जो है खराब होंगी क्या, नहीं होंगी, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो ये जो बॉन्ड है, गेनिंग एंड लूजिंग वाला बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, एंड जो शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, शेयर वाला बॉन्ड जो होता है, वो क्या होता है, वो वीक होता है, समझा, हाँ है ना। एंड जो गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, such bonds are called as ionic bond. And the bond which is formed by sharing of electron, इससे हो रहा है, शेयरिंग से हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इससे पहले आयनिक देखा था, आयनिक को हम लोग एक और नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, समझा। एक और टाइप बॉन्डिंग थी, मैंने बोला 3 थी ना, तीसरी भी बाकी है, बता था। ये आपको ज़्यादा आपको इस चैप्टर में थोड़ा बहुत दिखेगा, मगर ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, आपको हायर डिग्री में मिलेगा। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, मगर मोस्टली ये नाम से फेमस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक और पार्टनरशिप समझो, एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा है 1 लाख रुपया, या मेरे पास 2 लाख रुपया है नहीं, समझो भाई, भावना को समझो, मेरे पास 2 लाख रुपया है, और आर्या के पास एक घर है, आर्या के पास क्या है, एक घर है। आर्या ने मेरे पास आया और बोला सर हम लोग क्लास खोलते हैं, तो यहाँ पे एक तरह का ये भी हो सकता है कि मैं आर्या से 1 लाख लेने की जगह मैं बोलूँगा आर्या को, तेरा बेटा तू घर दे दे। ओके स्टूडेंट्स, राइट, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी है बेटा कि आर्या का घर मैं ले लूँ, मतलब घर बोलूँगा कि भाई मेरे को घर दे, मैं पैसा लगाता हूँ, अपन दोनों पार्टनरशिप करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्टनर जो है उसने क्या किया, उसने जगह प्रोवाइड किया, और दूसरे पार्टनर ने क्या किया बेटा, दूसरा पार्टनर क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक मिनट इसी जगह लेते हैं। हाँ, दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है। तो वैसे ही पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब क्या होता है इसमें, एक जो मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्या होता है,
वैकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया खाली खाली घर, वैकेंट ऑर्बिटल। और जो लिगैंड होते हैं, अब ये लिगैंड क्या होते हैं, ये आपको 12th में समझ में आएगा। तो लिगैंड होते हैं लाइक NH3, वाटर, दिस आर लिगैंड। लिगैंड वो होता है, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड या द, हाँ, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज लिगैंड, राइट ना। लोन पेयर मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है इसके पास, और ये बंदे का पैसा नहीं है, ये बंदे के पास क्या है, खाली घर है। तो क्या होगा, इनकी पार्टनरशिप हो सकती है ना। ये क्या करेगा, ये इसको पैसा दे देगा, और ये लोग एक घर में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करके अपना कुछ ना कुछ बिजनेस खोलेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पर इसको देता है। तो ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, राइट। यहाँ पर जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, लिगैंड क्या करेगा, वो डोनेट करेगा किसको, एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल को। किसको, मेटल ऑर्बिटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझा हम लोग को, ठीक है, अंडरस्टूड। आपके बुक में जो है, आपके इसमें लेवल पे उतना डीप में नहीं दिया है, आपको सिर्फ इतना पता है कि दो एटम है ए और बी। तो इसमें अगर एक एटम जो है दूसरे एटम को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या शेयर्ड पेयर, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब यहाँ पर पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट करेगा। एक एटम दूसरे वाले, ओके सॉरी, सॉरी बेटा, ओके, बॉस वापस से बोलता हूँ। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये एक मेटल है जिसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली घर, राइट। और एक जो है, एक मॉलिक्यूल जिसको लिगैंड बोलते हैं। लिगैंड क्या होता है, द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। अमोनिया हो गया, वाटर, वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं। कोई भी बंदा जिसके पास लोन पेयर रहेगा वो लिगैंड का काम करेगा। अब होता क्या है, लिगैंड क्या करता है, ये खाली घर है तो खाली घर में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, राइट ना, और बोलेगा कि पार्टनरशिप करते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप हुई, मतलब क्या है, ये इसको घर, मतलब एक क्लास खोलने का। तो इसने क्या किया, क्लास के लिए एक जगह दिया और इसने पैसा लगाया, तो अब दोनों के बीच पार्टनरशिप हो गई। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके बुक में ऐसा नहीं दिया, आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है। आपके बुक में क्या दिया है कि जब एक दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा, अपना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा या डोनेट करेगा, राइट ना। तो ऐसे टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अंडरस्टैंड, राइट ना। द बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर contributed बाय वन एटम टू अदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एक एटम से दूसरे एटम में अगर क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट होगा, डोनेट होगा, तो सच टाइम जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अंडरस्टूड बेटा, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एक मिनट, नेक्स्ट है आयोनिक बॉन्ड। मैं जो आयोनिक बॉन्ड, सो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है पहले समझो। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, ये तो मैं दूसरा बता रहा हूँ। आयोनिक बॉन्ड ये छोड़ दो, हाँ याद है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मैंने अभी बता चुका आपको, डिटेल में नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। एक एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट एग्जाम्पल सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड इट इट बिकम पॉजिटिव, यूनि पॉजिटिव आयन बन गया, बराबर ना। एंड एक एलिमेंट जो है वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन गया, और वी कैन से अनायन बन गया, ये कटायन बन गया। और एक जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना, अनायन बन गया। क्या बन गया, अनायन बन गया। अंडरस्टूड, ये कटायन है एंड दिस इज अनायन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर तो उन्होंने देखा था, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये हमने देखा था। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो
एक चीज, कौन सा एलिमेंट जो है वो फॉर्म करेंगे, जो पॉजिटिव आयन है वो कौन बनाएगा, पॉजिटिव मतलब कटायन कौन बनाएगा, तो कटायन कौन बनाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 के इलेक्ट्रॉन। कौन सा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 के एलिमेंट जो होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है ना। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। सो इट इज इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर इन दिस केस क्या होता है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से लूज कर देता है, 2 है। तो ऑक्टेट करने के लिए देखो यहाँ पर 2,8,1 है समझो, तो 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, क्या 7 इलेक्ट्रॉन लिखने लेना इजी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट में 2 है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर गेन 6 इलेक्ट्रॉन और लूज 2 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज इजी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इफ किसी के पास अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास दो ऑप्शन है, आइदर losing 3 electron or gaining 5 electron. So which one is better? 3 electron, losing of 3 electron is better one, right ना। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अंडरस्टूड बेटा। तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ये ग्रुप 13, राइट ना। तो वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, सच एलिमेंट्स lose the electron and form positive ions, that is cation. Understood beta? Understood? सिमिलरली इफ यू कम फ्रॉम 17 ग्रुप, है ना, 17 ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। उसके बाद 16 में आकर देखेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। 16 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 15 का देखेंगे तो क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8, व्हाट, 15 का एक एलिमेंट मैंने चूज़ किया, ऐसा नहीं हर एक का ये नहीं रहेगा, एक एलिमेंट चूज़ किया फर्स्ट वाला, तो बता रहा हूँ यहाँ पर 2,8,5 रहेगा। तो इसके लिए क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी होगा कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है। अंडरस्टूड बेटा। एंड आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म व्हाट, अनायन ओवर हियर, क्या बनाएंगे, अनायन फॉर्म करेंगे। सो तो क्या समझ में आया हम लोग को कि कौन से एलिमेंट, विच एलिमेंट कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। सो ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 3 एलिमेंट कैन फॉर्म cation, group 15 element, group 16 element and group 17 element, because they can gain electrons, right now 1, 2, 3, 3, 2, 1 respectively, right ना, ये 3 करेगा, ये 2, ये 1, right ना, and form anions। therefore these group element can form ionic bond। ये एलिमेंट क्या बना सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा। Okay, next topic is what, electropositive element। Now what is electropositive element, क्या होता है, तो the element, what is electropositive element, the metallic element which can lose electron easily, lose its electron easily and form positive ion। एक एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, तो सच एलिमेंट को, जो एलिमेंट जो लूज इजी इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहा है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एलिमेंट समझा हम लोगों, यस और नो। एंड द एलिमेंट विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इजीली, इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, है ना, नेगेटिव आयन बना हमारा, एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो, क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अंडरस्टूड बेटा। And the force of attraction between electropositive element and electronegative element to attain the stability, such force of attraction is called as electrovalent bond। Understood? यानी कटायन और अनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, राइट ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे व्हाट, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक।
Understood? Any doubt till yet? Definition अगर एग्जाम में आएगा तो what we will say the definition of ionic bond, the bond which is formed as a result of transfer of electron, right ना, transfer of electron from one atom to another atom, right ना, is called as ionic bond. Understood? आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है? हाँ, और ये एक तरह का अगर फोर्स पूछेगा तो ये फोर्स कौन सा है? कटायन और आयन के बीच में जो फोर्स होता है उसको ही हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. नाउ एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ गया. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी भी आपको मुझे क्वेश्चन आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो हियर इफ यू सी इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैंने बोला एक एलिमेंट जो सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बनाने के लिए. तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या फिर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया. NCl, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, Cl माइनस यहाँ बनेगा. तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, राइट ना. इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that atom of element loses or gains to form electrovalent bond. Such uh, number of electrons are called as what, electrovalence. Again बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड गेनिंग जो हो रही है, वो जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी. अंडरस्टूड बेटा? एक ही बच्चे को समझ में आया, बाकी लोग को समझ में आया? अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड बेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कंडीशन फॉर, बाद में देखेंगे, ब्लैक व्हाइट बोर्ड लेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. कौन सी कंडीशन है कि हमारा आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा या जल्दी बनेगा, राइट, इजीली कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है. पहली कंडीशन क्या रहेगी, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. याद है क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट चैप्टर. बोलो बेटा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस प्लीज रिस्पॉन्स फास्ट. ऑडिबल? what I am asking, what is ionization enthalpy? ionization enthalpy क्या होती है? क्या होती है? भूल गए क्या भाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? द एंथैल्पी फॉर आयोनाइजेशन बताया था. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. याद आया हम लोग को? इन इट्स गैसियस स्टेट. याद आया? कोई भी एटम के आउटर मोस्ट से अगर हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी लगती है, राइट ना, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मैं बोल रहा हूँ एक एलिमेंट, पोटेंशियल भी बोलते हैं, हाँ बोल सकते, वेरी गुड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोथ आर सेम. सो इफ आई टेक एग्जांपल ओवर हियर कि एक एलिमेंट है, राइट, यहाँ पर एक ये एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लेस है, और एक ये एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, मोर है, बराबर, ज़्यादा है. समझो इसकी 10 है, इसकी 100 है. इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है. अरे हाँ या ना? 10 एनर्जी लग रही है ना, 10 लग रही है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है, इसलिए कम एनर्जी लग रही है. अरे हाँ या ना? यस. और इसमें 100 है, इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है. तो ऑब्वियसली कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली जिसमें कटायन अच्छे जल्दी बनेगा?
कटायन जल्दी बने। कटायन क्या होता है, अभी बताया कटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनना, पॉजिटिव आयन बनना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूंगा इस केस में, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ेगा, इसका मतलब कटायन जल्दी बनेगा, है कि नहीं, यस और नो? अरे हाँ है ना, मैं बोल रहा हूँ सोडियम का पहला केस बोलता हूँ। सोडियम जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम को कम एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो Na+ जल्दी बनेगा। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या है, जितनी आयोनाइजेशन थाल्पी या जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो रहेगा, है ना, उतना इजीली कटायन फॉर्म होगा। अंडरस्टूड, यस और नो? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट, इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि, एक मिनट ऐसे निकालें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट कि हमारा कटायन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नहीं डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी उतना इजीली कटायन फॉर्म होगा, यस और नो? समझा पॉइंट ये, पहला पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया हम लोगों को कि भाई ये क्या है। अगर हम लोग को कोई मैं बोलूँगा दो एलिमेंट है, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, तो आपको बोलेंगे जिस इसका आयन एंथैल्पी 10 है, इसका इसका 100 है, तो कौन पहले कटायन बनाएगा, कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, ए जो है पहले कटायन बनाएगा। अंडरस्टूड यहाँ तक? देखो बेटा, मैं कटायन पे क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोग को मालूम है हम लोग किसकी बात करें, आयनिक बॉन्ड की बात करें। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कटायन और अनायन के बीच में बनता है, बराबर ना? कटायन अगर अपने पास रहेगा, अनायन रहेगा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो पहला तो क्राइटेरिया ये आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले हम लोग को कटायन चाहिए और अनायन चाहिए। तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट जिसके कटायन जल्दी फॉर्म होते हैं, है ना, द एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो है, एक मिनट, ऐसा एलिमेंट जो है वो, एक मिनट सॉरी, अरे बाबा दरवाजा बंद करना, अरे मैं लेक्चर ले आपा, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, सॉरी बेटा, कोई आ गया था। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आया, कटायन देखो, मेरे को पूछा है कि आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनेगा, जब कटायन जल्दी बनेगा और अनायन जब जल्दी बनेगा। तो पहला मैंने क्राइटेरिया बता दिया, कटायन कब जल्दी बनेगा, कटायन जब जल्दी बनेगा जब उस सामने वाले एलिमेंट के पास क्या आएगा, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहेगा, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, लो रहेगी। अंडरस्टूड? अरे हाँ है ना। नाउ सेकेंड, अनायन कब जल्दी बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है हम लोगों ने। ये क्या है, एफिनिटी है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैं बोल रहा हूँ ए है और बी है, ए में ए की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, राइट ना, ए की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है बी के मुकाबले में, इसको भूल जाओ, बी के मुकाबले में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचता है। अरे हाँ है ना, ज़्यादा खींचता है, इसका मतलब तुम बताओ कौन जल्दी नेगेटिव बनेगा, ए और बी, कौन जल्दी नेगेटिव बनेगा, ए जल्दी नेगेटिव बनेगा, बिकॉज ए जो है इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो करता है, ए जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचता है, तो यानी इसका मतलब ए नेगेटिव जल्दी बनेगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होंगी वो जल्दी अनायन बनाएगा। यानी अनायन फॉर्मेशन का अगर मैं पॉइंट बोलूँगा, तो अनायन फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, अनायन फॉर्मेशन जो है डिपेंड करेगा किस पे, is directly proportional to what, high electronegativity, electron high electron affinity। जितनी ज़्यादा एफिनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना वो इजीली क्या बनाएगा, अनायन फॉर्म करेगा। अंडरस्टूड यहाँ तक समझा? बस सिंपल सी बात है, अगर एक दो एटम जुड़ रहे, ए और बी अगर मैं बोल रहा हूँ, उसमें से ए, अगर ए के पास जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है और बी के पास जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या रहेगा, आयनिक बनेगा, वो जल्दी बनेगा। यस और नो? समझा?
एक ही बच्चे को समझा, परी को। व्हाट अबाउट अदर? टिल yet any doubt is there? शौर्या, सक्षम, शौर्या। एक और क्राइटेरिया होता है बेटा, एक और क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मतलब क्या बेटा? Na प्लस NCl माइनस। जो एलिमेंट जुड़ने वाले हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। जितना हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इजी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, राइट ना। जितना ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट ना। सिंपल सी बात है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इनके ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, एक एलिमेंट जो मैं जोड़ रहा हूँ, ए पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, बी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसके में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों की ताकत सेम है, समझो बात को, हाँ बेटा, दोनों की ताकत सेम सेम है, तो वो लोग जो है वो बॉन्ड जो रहेगा वो शेयर से बनेगा ना। दोनों की ताकत सेम है तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, शेयरिंग करेंगे, है ना। शेयरिंग कब होती है? जब दोनों की ताकत सेम होती है। और गेनिंग एंड लूजिंग कब होगा? एक बड़ा गुंडा है, एक पार्टनरशिप समझो, अगर मेरे को दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, राइट ना, राइट। अब यहाँ पर ए और बी, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर कब होगा? जब इसकी और इसकी ताकत, पावर जो है सेम है। अब पावर के मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर मतलब दोनों बॉडी बिल्डिंग में भी सेम है, उसको लोग का रुतबा भी सेम है, वो लोग का टच भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन छीन पाएगा क्या? नहीं, कोई छीन नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे शेयरिंग होगा, मतलब कोवलेंट बॉन्ड होंगे, बराबर ना। बट अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन रखता हूँ ए और बी के बीच में, बी जो है गुंडा है और ए जो है वो शरीफ है, अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? बी ले लेगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? बी ले लेगा। और ए बेचारा गरीब हो जाएगा, तो ए जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बी जो होगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ऑब्वियसली कटायन और आयन के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। समझे हम लोग को? तो इसका मतलब क्या है? अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहेगा तो ही आयनिक बॉन्ड बनता है। अगर डिफरेंस बहुत क्लोज है या फिर नहीं है डिफरेंस, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। और जितना ज्यादा डिफरेंस बनते जाएगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। अंडरस्टूड बेटा? द मोर इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द आयनिक नेचर ऑफ बॉन्ड। अंडरस्टूड? यस और नो? बोलो बेटा, समझाना है, रिस्पॉन्स क्या करूँ, समझ में आया या रिस्पॉन्स रिपीट करना है? अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। ये हो गया तीन क्राइटेरिया आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है? एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? एक एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? ठीक क्राइटेरिया था। नाउ जो है एक और चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखेंगे तो CF क्वेश्चन ये उठता है कि कौन जो है, कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर क्या है, वो क्या रहेगा, कौन सा एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका जो है वो जो आयनिक बॉन्ड अच्छे से फॉर्म होगा, या कौन सा कंपाउंड जो है, दो एलिमेंट कौन से रहेंगे जो आयनिक बॉन्ड अच्छे से फॉर्म करेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होता है, वो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? तो मैंने आपको बोला था, जितनी साइज बढ़ेगी, जितनी साइज बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उतना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना इजीली निकलेगा। याद आया हम लोग को? अरे हाँ, है ना? बोलो। हाँ। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है,
और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो राइट वाले लेफ्ट साइड में जो पीरियड्स है, सॉरी जो ग्रुप है, वो सबसे बड़ी साइज के हैं। मतलब ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, बड़ी साइज के एलिमेंट है, बराबर। अब ग्रुप वन में आते हैं, ग्रुप वन में सबसे ज़्यादा बड़ी साइज किसकी है, तो जब से सबसे नीचे रहेगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ना साइज, तो सबसे नीचे कौन है, सीसीएम है। फ्रांसियम भी है, फ्रांसियम है, मगर फ्रांसियम को हम लेते नहीं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो भूल जाओ। तो सीसीएम सबसे बड़ा साइज में, और साइज सबसे बड़ी सीसीएम की है। इसका मतलब सीसीएम जो है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल की लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, सबसे लो रहेगा। समझा। याद रखना आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी फिलहाल साइज में समझते हैं। साइज में सबसे बड़ी साइज किसकी है, सीसीएम की है। इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लो रहेगा। समझा हम लोग को, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया कटायन वाला। अब अनायन की बात करते हैं। अनायन में कौन, अनायन में कैसा चाहिए अनायन हम लोग को, अनायन वो होना चाहिए, ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा कब रहेगी, जब साइज छोटा रहेगा, साइज स्मॉल रहेगा, तो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन करीब रहेगा न्यूक्लियस के। और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज जो है ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो उसको खींचेगा ज़्यादा, एफिनिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये कौन बंदा है जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और साइज़ जो है वो छोटी है, कौन है। तो साइज़ सबसे छोटी किसकी है पहले समझते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होती है। इसका मतलब जो ग्रुप 17 एलिमेंट, 18 तो हम लोग बात नहीं करते, हमें बताया था क्यों बात नहीं करते उसकी। तो ग्रुप 17 एलिमेंट सबसे छोटी साइज़ की है ना। अब 17 में भी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे छोटी साइज का होगा। तो फ्लोरीन जो है वो, फ्लोरीन क्या है मेरा, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। फ्लोरीन क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। इसका मतलब इसके अंदर एफिनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास एफ है जो अनायन बन सकता है, और सी एस है जो कटायन बन सकता है। तो इसका मतलब सी एस और एफ के बीच जो बॉन्ड रहेगा सबसे बड़ा आयनिक रहेगा। एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच बॉन्ड इज हाइएस्ट, शोज हाइएस्ट आयनिक कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग। एमसीक्यूज में आ गया कि समझो कि क्वेश्चन आ गया कि विच बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, वो है सी एस एफ बॉन्ड। क्यों, समझ में आया हम लोग, वाई, बिकॉज सी एस हैज लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अंडरस्टूड। व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आया बेटा। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, हाँ अब तक की क्या देखा हम लोगों ने, अब तक की हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। टाइम, तो आज हमने क्या देखा, पहला क्या है, मेरे को अभी आप लोग आंसर करेंगे और आंसर करना है। मैं जो जो पूछूंगा उसका आंसर करना है, देखना है कि हम लोग को आता है कि नहीं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सो फर्स्ट, स्टेबिलिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ओवर हियर। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एलिमेंट को क्या करना होता है उनको स्टेबल होने के लिए। यस, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, राइट। और किसी ने कुछ और बोला था, बोलो बेटा, हो सकता है आप भी सही हो। गेन एंड लूज है, वो तो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे का। पहला क्राइटेरिया क्या है मैंने पूछा, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी इन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का क्या है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट स्टेट। अंडरस्टूड, यस और नो, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नॉन रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, वाई। Yes, they have stable electronic configuration, means what? Their octets are complete. Therefore, they don't need to react. There is no need to react. Right ना? Group 18 element के वो react करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now, next question is, what are the causes of chemical combination? Chemical combination क्यों हो रहा है? क्यों वो लोग कर रहे हैं? ये सब मगजमारी क्यों कर रहे हैं? Bond form क्यों कर रहे हैं? Why? What is the need of chemical bond? What is the cause of chemical bond? Huh? Yes. To achieve the nearest noble gas configuration and become stable. नज़दीक की जो ऑक्टेट है या ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना,
और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो लोग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। नाउ बॉन्ड पे आते हैं। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? वेरी गुड बेटा। राइट ना? बेटा करेक्ट है आपका। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट ना, व्हिच बाइंड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, राइट ना। कब होता है मगर ये? ड्यूरिंग transfer of electron or redistribution of electron, right now? So current definition would be what? During redistribution of electron, the force of attraction that develops between atoms in a molecule that bind them together in a molecule, such force of attraction is called as what? Chemical bond. Understood, beta? Yes or no? एंड अगर जनरल नॉलेज में या स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कुछ बोलना है तो हम लोग बोलेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। अगर पूरा डीप में नहीं बताते हुए जस्ट बताना है तो दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट केमिकल बॉन्ड। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, व्हाट आर दे? Yes, there are three types of bond: electrovalent bond, ionic bond, which is also called as ionic bond, covalent bond, which is also called as molecular bond, and third one is what? Coordinate bond, which is also called as dative bond. Right? Now, what is the definition of electrovalent bond or ionic bond? How the ionic bond is formed? Metal and non-metal. Very good. The bond between metal and non-metal is called as ionic bond. And how it is formed? Please. Yes. It is formed by transfer of electron or gaining and losing of electron. The bond which is formed by transfer, or bracket में you can write the gaining and losing of electron, such bonds are called as electrovalent bond, right now, or ionic bond. Now tell me, which element can form ionic bond? Which kind of element can form ionic bond? What is the criteria over here? Alkali metals, very good. Group 1 element. Only group 1 element can form? Very good. Group 1, group 2, group 13, these three groups elements can form ionic bond. Why this is so, beta? Because they are metals. Good, very good. Because they are metal. It is 70% correct but not proper, beta. कोई और बताना चाहेगा why these group can form ionic bond? Because they are metal, right now. As they are metal, they have tendency to lose the electrons, right now. They have 1 2 3, right now, valence electron in their outermost shell, right now, and they have tendency to lose the electron and form positive ions, right now, cation, right. In similar way, group 15 16 17, right, have tendency to gain the electron 3 2 1, right now, electron gain करने की property है, and therefore they can form anions, right now, and therefore they can form electrovalent bond or ionic bond because they form cation and anion, and the force of attraction between cation and anion is called as what? Electrovalent bond. Understood? Yes, very good, beta. Now, my next question is what conditions for formation of ionic bond? What are the conditions? No, one thing is missing. One thing is there we have to study, that is the electrovalency. What is electrovalency? Electrovalency is there. Repeat it fast. We have only 1 minute left. Be fast, beta. For formation of positive and negative ions, atoms either lose the electron or gain the electron, right now. The number of electron the atom lose or gain, right now, these number of electrons are called as what? Electrovalency, right now. पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम और गेन करता है,
तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। अंडरस्टूड बेटा? राइट। तो जो है ये यहाँ पर वी विल स्टॉप ओवर हियर बिकॉज इट्स टाइम इज ओवर नाउ। नाउ वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट? एंड वी स्टार्ट विथ व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड हमने देखा होता क्या है, और नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कि वो स्टेबल क्यों होता है। नेक्स्ट टाइम आपको जो मैं पूछूंगा आपको आना चाहिए बेटा, राइट ना? आपको ऐसा नहीं है कि भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो आपको आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन नहीं मालूम है, व्हाट इज आयनिक कंपाउंड यू डोंट नो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कैसे भूल गए आप, आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं दिया ना आपने, तो वो रॉन्ग था बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? आपको हर लेक्चर से पहले पिछले लेक्चर का पढ़ के आना चाहिए, यही तरीका होता है पढ़ने का, राइट ना? दिस इज द राइट वे टू स्टडी। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू।